start one by one. First का magnitude find करते हैं. So the magnitude will be 1 square of coefficients and then their root. So it will give me root 3. Part B, the magnitude of this vector will be 2 square plus minus 7 square plus minus 3 square and root. It will give me 4 plus 49 plus 6. 4 plus 49 plus 9. And it will give me root 62. Now the third part, same procedure. It will give me magnitude of vector C equals to 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3. This root is cancelled by the square in the formula. So it will give me 1. So this is question 1. Now let's move to the second question. It is saying write two different vectors having same magnitude. Now I am supposed to write two different vectors whose magnitude is same. There are many possibilities. Your answer could be different from me. So I am writing two vectors A equals to 1i plus 2j plus 3k, and the other one I am writing is 2i plus 1j plus 3k. They are different, but because coefficients are same, so their magnitude will be same. Third question, it is saying write two different vectors having same direction. If it is saying the direction is same, their direction ratios must be proportional to each other. So I will write it like this. There is a vector P. I will say it is 1i plus 2j plus 3k, and I am writing the other vector, that is Q. It must be the proportional to this, so that the directions are same. And I am writing it 2i plus 4j plus 6k. So both of these vectors will have same direction. Now move to the fourth question. It is saying find the value of x and y so that vectors 2y plus 3j. There is a vector 2y plus 3j and xi plus yj. Let me read it again. Find the value of x and y so that vector 2y plus 3j and xi plus yj are equal. Now अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं वो कब होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, उनके कोरस्पॉन्डिंग के कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल हो. तो यहाँ से सिंपल से समझ में आ रहा है हमें कि दोनों इक्वल कब होंगे? जब i वाले कंपोनेंट इक्वल हो, इसका मतलब x इक्वल टू 2 हो और y इक्वल टू j वाले कंपोनेंट भी इक्वल है, यानी y इक्वल टू 3 हो. तो ये फोर्थ क्वेश्चन. Very easy questions these are. Fifth question. Find the scalar and vector components of the vector with initial point 2, 1 and terminal point -5, 7. So let me take the initial point be P and it is 2, 1. The initial point is 2, 1. So the position vector, like write it, P is 2, 1 and Q is -5, 7. So the position vector of these vectors will be vector OP, where O is the origin. It will give me 2i plus j, and the position vector of point Q, OQ, will be -5i plus 7j. Now I want a vector for which initial point is P and terminal point is Q. That is, I want to find vector PQ, and we know vector PQ will be equal to vector OQ minus
vector OP. This is the formula for vectors passing through 2 points, going through 2 points, and it will give me OQ minus OP. So let me write it first. Minus 5i plus 7j minus 2i plus j, 2i plus j. So it will give me minus 7i and plus 6j. So what it is asking कि भाई find the scalar and vector components. So scalar components क्या होंगे? Scalar component of vector P Q. It will be minus 7, 6. These coefficients. And the same way vector components क्या क्या होंगे? Of vector PQ. It will be the whole component 7i plus 6j with directions. So this is question number 5. Now I am moving to question number 6. It is saying there are 3 vectors. Let me write them first. Let's write them here. And the vectors are vector A equals to I minus 2j plus k, I minus 2j plus k. Then there is vector B minus 2i plus 4j plus 5k, minus 2i plus 4j plus 5k. And then the last vector, vector C is I minus 6j minus 7k, I minus 6j minus 7k. And he is asking find the sum of these vectors. So let's find the sum of these vectors. It will be vector A plus vector B plus vector C. और हम ऐड कैसे करते हैं? उनके जो कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स है, जैसे I वाला कंपोनेंट, I वाला कंपोनेंट, I वाला कंपोनेंट, इनको हम आपस में ऐड कर देंगे. ऐसे J वाला कंपोनेंट इधर, J वाला कंपोनेंट इधर, J वाला कंपोनेंट इधर, इनको ऐड कर देंगे. इन द सेम वे K वाला कंपोनेंट, K वाला कंपोनेंट और K वाला कंपोनेंट, इनको हम ऐड कर देंगे. तो कितना बनेगा मेरे पास? इधर 1 है कंपोनेंट. सो इट विल गिव मी 1 minus 2 plus 1. ये हुआ I का कंपोनेंट. फिर J के लिए -2 plus 4 minus 6. ये हुआ J का कंपोनेंट. देन K के लिए 1 plus 5 minus 7. ये हुआ K का कंपोनेंट. अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? minus 2i. It will give me minus 4j, and from there I will get minus k. So this is the sum of these 3 vectors. So this was the question number 6. Okay. Now let's move to the question number 7. There is a vector vector A equals to I plus j plus 2k. Vector A equals to I plus j plus 2k, and he is saying find the unit vector in the direction of vector A I plus j plus 2k. इसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर को पहले तो a कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, a के ऊपर कैप ना दी, और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. तो पहले वेक्टर a तो है, मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा. इधर फाइंड कर लेते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना होगा? इनके कंपोनेंट्स का, स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर और फिर उसका रूट. सो इट विल गिव मी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर. उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स थे मैंने उनका स्क्वायर कर दिया फिर रूट कर दिया. इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 plus 1 plus 4, it means 6. It will give you root 6.
So now A cap will be vector A I plus j plus 2k and divided by magnitude of vector A, that is √6. अब इसको वेक्टर की फॉर्म में अलग अलग करके लिखना पड़ेगा. So it will give me 1 upon √6 I plus 1 upon √6 j plus 2 upon √6 k. ठीक है, ये होगा हमारे पास में ये. हाँ, उसने यूनिट वेक्टर. तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में जितना बड़ा कांच होता था, मैंने सेम डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन तो ये होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1. आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, करके देखिएगा बना रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इट इज सेइंग? Find the unit vector in the direction of vector PQ. PQ क्या है? Where P and Q are the points. The points are given and let me write them. Point P is equals to 1, 2, 3 and point Q equals to 4, 5, 6. And he is asking unit vector in direction of PQ. I will say this is vector PQ and I am making the cap. ये उसने पूछा हुआ है. तो पहले वेक्टर PQ निकालना पड़ेगा. वेक्टर PQ से पहले इनके पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे. देखो मैं प्रोसेस कैसे होगा. हमें ये निकालना है, इसके लिए मुझे चाहिए वेक्टर PQ. और अभी रफ में हम अपने दिमाग में कर रहे हैं कि क्या क्या चाहिए. ये चीजें बिल्कुल ठीक है. और वेक्टर PQ निकालने के लिए मुझे OP चाहिए और OQ चाहिए. तो इतनी सारी चीजें मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, तभी मैं चलते चलते यहाँ तक पहुंचूंगा. तो 1 बाय 1 विल स्टार्ट. सबसे पहले वेक्टर OP निकालते हैं. OP कितना आएगा? I प्लस 2j प्लस 3k. उस पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, पोजीशन वेक्टर. तो इट विल नाउ फॉर Q, OQ विल बी 4i प्लस 5j प्लस 6k. ठीक है, दो वेक्टर्स में. अब फिर ये स्टेप हमने क्लियर कर लिया. अब हमें निकालना है वेक्टर PQ. अब वेक्टर PQ क्या होगा मेरे पास में? वेक्टर OP माइनस वेक्टर PQ विल बी OQ. जो बाद वाला पॉइंट होता है पहले वो लिखते हैं. ठीक है, OQ माइनस OP. ठीक है. हाँ, अब वैल्यू फाइंड करते हैं. तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे. इधर 4 है, मैं एक बार लिख देता हूं, है ना. 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k. i प्लस 2j प्लस 3k. और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 4 में से 1 गया तो 3i प्लस 5 में से 2 गया तो फिर से 3j, 6 में से 3 गया तो प्लस 3k. बड़ा सुंदर वेक्टर आया है. 3i प्लस 3j प्लस 3k. अब ये वाला हमने स्टेप भी कर लिया. अब हमें और क्या फाइंड करना है? चाहिए इसका मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पर PQ का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. कितना आएगा? उसके स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके पूरे का रूट. So it will give me 3 square plus 3 square plus 3 square and then root. What will be the value? It will give me 3. देखो मैंने कैसे किया. 3 स्क्वायर कॉमन लूंगा. ठीक है, और जब वो बाहर आएगा तो 3 बच जाएगा. अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि √3. ऐसा मुझे लग रहा है. चेक कर लेते हैं. 3 3 are 9, 9 3 are 27 and it will give me the same. Okay, this is the magnitude. अब ये वाला स्टेप भी हमारा पार हो गया. अब हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे यूनिट वेक्टर की तरफ. So PQ unit vector will be vector PQ divided by mod magnitude of vector PQ. तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर PQ कितना है? 3i प्लस
3j प्लस 3k और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना फाइंड किया हमने 3√3। यहां से मेरे पास में आ जाएगा, जब उसको हम सेपरेट करेंगे कितने के 1/√3 i प्लस 1/√3 j प्लस 1/√3 k। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ pq। ठीक है, शुरू से ये p पॉइंट ये था, q पॉइंट ये था, तो उन पॉइंट से जाने वाला एक वेक्टर होगा। अब वो तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो सकता है। तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने क्या कर लिया, यूनिट वेक्टर कर लिया। और इसका फायदा क्या होता है, यूनिट वेक्टर के अंदर पीछे भी पड़े हुए हैं, उसको भी हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। इसके हेल्प से हम बहुत सारी और चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे 8 का क्वेश्चन हो गए। Now let's move to the next question, that is question number 9. What it is saying, वो कह रहा है कि 4 given vectors a वेक्टर दिया है, b दिया है, find the unit vector in direction of vector a plus b। a plus b की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले a plus b निकालना पड़ेगा। तो पहले वैल्यू लिखता हूँ, वेक्टर a कितना है मेरे पास में 2i minus j plus 2k, 2i minus j plus 2k, और वेक्टर b गिवन है minus i plus j minus k, minus i plus j minus k। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a plus b की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले ऑब्वियसली a plus b निकालना पड़ेगा। वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना आएगा, कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 minus 1 यानी कि 1 i। ठीक है, -1 प्लस 1 खत्म, 2 minus 1 प्लस k। ठीक है, यह a प्लस b। अब मुझे निकालना है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो हम लिखेंगे पहले यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, ऊपर वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और उसका रूट, यहां से इट विल गिव मी √2। ठीक है, अब हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर in direction और वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, क्या होगा, वो होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, एंड इट विल गिव मी i प्लस k एंड
is divided by root 2, and when I separate this it will give me root 1 upon root 2 I plus 1 upon root 2 k. डन हुई बात? ये हमारे पास में आ गया 9th क्वेश्चन के लिए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a प्लस b दिया है, ठीक है। आप इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड लेकर देखिए, आपके पास 1 आना चाहिए, आएगा। एंड इट विल गिव मी now let's go to the question number 10. Find a vector in direction of 5 5 minus एक वेक्टर दिया हुआ है, उसके डायरेक्शन में आपको वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन खासियत क्या है, which has magnitude unit 8। इस बार यूनिट वेक्टर नहीं निकालना, ऐसा वेक्टर निकालना है जो हो तो उसके डायरेक्शन में लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 हो। अब यहाँ पर मजे की चीज क्या है, अगर मैं आपको एक एप्पल की कॉस्ट बताऊं, एक एप्पल 10 रुपए का है, तो और उसके बाद पूछो 8 एप्पल्स कितने रुपए के होंगे, 8 एप्पल्स, तो आप कहेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो और मैं आपसे कहूं कि ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लंबाई, तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे आप, डायरेक्शन तो सेम रखना है, तो आप उस पूरे वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होगा, ठीक है। देखते कैसे करेंगे, पहले मैं वेक्टर लिख लेता, मैं वेक्टर को नाम दे देता हूं, क्योंकि नाम देने से काम थोड़े से आसान हो जाते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं 5i माइनस j प्लस 2k, ओके। सो दिस इज द वेक्टर एंड ही इज आस्किंग यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन यही हो और मैग्नीट्यूड ऑफ 8। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे यूनिट वेक्टर। देखो मैं पहले प्रोसीजर लिखता हूँ, ठीक है। अब मुझे 8 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना है। अच्छा, उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले मुझे यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मुझे ये चाहिए होता है वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड। तो अब वेक्टर ए है, क्या स्टेप चाहिए मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड कर लेते हैं, ये आएगा मेरे पास में 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और फिर उसका रूट, तो इट विल गिव me 25 प्लस 1 प्लस 4, 25 प्लस 1 26 एंड 4 30, तो इट विल गिव 30 रूट, ठीक है। एंड लेट इट बी रूट 30। नाउ मेरे पास ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, मुझे क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। So a cap, I am representing with a cap, it will give me vector a divided by magnitude of vector a, and I have 5i minus j plus 2k divided by root 30, ठीक है। अभी इसको ओपन भी कर लेते हैं, it will give me 5 upon root 30i minus 1 upon root 30j प्लस 2 अपॉन रूट 30k, आंसर को अलग कर दिया। अब यूनिट वेक्टर वाला भी हो गया, तो काम नोट करना है, फोटो नहीं। लास्ट में 8 मैग्नीट्यूड वाला, तो 8 मैग्नीट्यूड वाले के लिए क्या चाहिए, तो उसको हम क्या, अब इसका जो यूनिट है 1 है मैग्नीट्यूड, तो मुझे 8 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए, इस वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आएगा वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन पहले वाला क्या रहेगा, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 कितना होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 5 40 अपॉन रूट 30i माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 8 अपॉन रूट 30j, इसको करेंगे प्लस 8 2 16 upon root 30k, okay। So this is the vector in direction of a with magnitude 8। आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके देखिए 8 आता है कि नहीं आता, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 11। शो दैट द वेक्टर, एक वेक्टर दिया है एंड दूसरा वेक्टर दिया है आर कोलिनियर। अब वेक्टर कोलिनियर ये बड़ा मजेदार है, इसको हम लोगों ने भी सेकंड क्वेश्चन में भी किया था।
थर्ड क्वेश्चन में दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे या फिर उनका डायरेक्शन सेम कब होगा अगर उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल है, या फिर मैं कहूं उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स है ना i j के साथ जो लगे हुए हैं अगर वो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब होता है कि वो दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर है। ठीक है, अब मैं वेक्टर लिखता हूं, 11th क्वेश्चन में ये कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो वेक्टर है, मैं नाम दे देता हूं, नाम देने से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। वेक्टर a इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, और दूसरे वेक्टर को नाम दे देते हैं वेक्टर b माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अब आप यहां से देख सकते हैं कि देखो इससे -2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 आ जाएगा, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आ जाएगा। यानी कि जो कोरस्पोंडिंग स्केलर कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हुए, दोनों कोलिनियर होंगे। हम लिखेंगे इसको ये, और जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं यही डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं, कोरस्पोंडिंग स्केलर components are proportional, so vector a and vector b are अगर नाम देने से फायदा क्या होता है, यहाँ पे मैंने ए और बी नाम दे दिया तो मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी लिखना पड़ा, पूरा लिखना पड़ता था ना, इसीलिए बस हम लोग नाम नए सिंबल्स नए नाम देते रहते हैं मैथ्स के अंदर ताकि हमारा जो है काम थोड़ा सा आसान हो जाए। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11 लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, वो कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस। उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करने हैं, कर लेते हैं। पहले मैं वेक्टर लिखता हूं, फिर से एक नाम दे देता हूं ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। सो i प्लस 2j प्लस 3k। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं ना, डायरेक्शन कोसाइन हमने पढ़ा था कि हमारे पास तीन डायरेक्शन कोसाइन होंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा। मेरा अल्फा क्या है, वेक्टर का OX x एक्सिस जो है उससे कितना एंगल है, बीटा क्या है, वेक्टर y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो फिर तीसरा होता है हमारे पास में गामा। गामा क्या है, z एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। ठीक है, अब कोस अल्फा क्या होगा, जो उसका i का कंपोनेंट है उसको अगर मैं a1 से रिप्रेजेंट करूं और उसको डिवाइड करेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, जो j का स्केलर कंपोनेंट है a2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड से, और इधर हो जाएगा मेरे पास में a3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। a3 क्या है, a का कंपोनेंट। ठीक है, अब वैल्यूज फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, a1 a2 a3 तो है, मैग्नीट्यूड यहां पे फाइंड कर लेते हैं आराम से। ये आएगा मेरे पास में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 4 5 5 प्लस 9 14, तो इट विल गिव मी रूट 14। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं फटाफट से। ये आएगा मेरे पास में 1 अपॉन रूट 14, ये आएगा मेरे पास में 2 अपॉन रूट 14, और ये आएगा मेरे पास में 3 अपॉन रूट 14। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए तीनों। लेट्स मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है वो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स a, एक पॉइंट दिया हुआ है, एंड पॉइंट b डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। वो कहता है एक पॉइंट a है एक पॉइंट b है, आपको a से b की तरफ एक वेक्टर बनाना है
डायरेक्शन कोसाइंस बनानी है। तो क्या करेंगे, देखो प्रोसीजर हमने क्या किया, पहले पॉइंट लिए, ठीक है। अब पॉइंट से वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या किया था, पोजीशन वेक्टर, तो पहले पोजीशन वेक्टर लेंगे, ए का भी बी का भी, फिर वेक्टर ए बी बनाएंगे। वेक्टर ए बी कैसे आएगा, ओ बी माइनस ओ ए, वेक्टर ए बी आ गया। और फिर जैसे इसको हमने प्रोसीड किया उसके हिसाब से हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं जिसमें दिए हैं। पॉइंट ए इज गिवन बाय 1, 2, -3 and point B is given by -1, -2 and 1, and I'm supposed to do for the vector AB. तो वेक्टर पहले क्या करते हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। वेक्टर OA कितना होगा मेरे पास में, I + 2j - 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर OB कितना होगा, -I - 2j + k। अब क्या फाइंड करेंगे, अब AB के लिए सब कुछ करना है, तो वेक्टर AB फाइंड करते हैं। वो कितना होगा, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। वेक्टर्स लिखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग कितना आएगा, एक बार लिख लेते हैं, -I - 2j + k माइनस वेक्टर OA लिखते हैं I + 2j - 3k। ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, -1 तो -2i या -2, इधर भी -2, -4j, इधर +1, इधर +3, माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा, तो +4k। ठीक लिखा मैंने, लग तो रहा है ठीक लिखा है, ठीक लिखा होगा। आगे चलते हैं। कहा क्या उसने, ए भी निकाल लिया। अभी वो कहता है कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमने देखा कि भाई हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, तो लगे मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। सो इट विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी विल बी इक्वल्स टू द -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इन द होल रूट स्क्वायर रूट, and it will give me 4 + 16 + 16। लिख लेते हैं, कितना आएगा, it will give me 36, 16 + 4 20 + 16 36, and it will give me 6। ओके, आ गया। अब निकालने में देखो डायरेक्शन कोसाइन। तो cos अल्फा विल बी फर्स्ट कंपोनेंट ये रहा, -2 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि -1/3। ठीक है। cos बीटा में क्या लिखते हैं, j वाला कंपोनेंट कितना है, -4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 6, ये आएगा -2/3। फिर तीसरा लिख लेते हैं, k वाला कंपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 6 यानी कि 2/3। तो ये आपके पास क्या है, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ये हुआ 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट द वेक्टर I j k I + j + k वेक्टर है इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ox oy oz। आपको कह रहा है वेक्टर है I + j + k, वो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली झुका हुआ है। अब झुके हुए का क्या मतलब है कि वो हर एक्सिस से बराबर एंगल बनाता है। अब एक्सिस से बनने वाले एंगल कहाँ देखे थे हमने, अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि घुमा फिराकर मुझे वो फिर से क्या कह रहा है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और इस बार इक्वली इंक्लाइन होने चाहिए, यानी कि एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फाइंड कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 क्वेश्चन, वेक्टर को नाम दे देता हूं, वेक्टर a = वेक्टर I + j + k। हमें पता है इसके लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, तो मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूं। इट विल गिव मी 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर एंड द रूट ऑफ दैट। ओके, एंड इट विल गिव मी √3।
Then now it's time to calculate the direction cosine. So cos alpha equals to I component, it is 1 divided by magnitude 2, 3. Very good. Cos beta equals to j component 1 divided by magnitude root 3. K फिर निकालेंगे cos gamma k component 1 divided by magnitude root 3. Now it is clear here that cos alpha equals to cos beta equals to cos gamma. ठीक है, तीनों का सेम साइन सब कुछ सेम सेम है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो है तीनों से दैट्स व्हाई अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा. इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल है, और एंगल इक्वल होने का मतलब क्या है कि वो तीनों के तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बनाता है, यानी कि वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड फ्रॉम ऑल थ्री एक्सिस. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 तक. Now let's do the question number 15. क्या कह रहा है? Find the position vector of point R which divides the line joining the point P and Q whose position vectors are given respectively in the ratio 2:1. Section फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे. क्या कह रहा है मैं बताता हूँ आपको. पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, लाइन जॉइन करें फर्स्ट केस में, दो केसेस में, और इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनके इंटरनली, फर्स्ट केस क्या है इंटरनली, इंटरनल उनके बीच में कहीं पर एक पॉइंट R है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर दे रहा है. ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर Q का, पोजीशन वेक्टर P का पूछ कर रहा है. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R. R को ये फाइंड करना है, इसको मैं R नाम से कह रहा हूँ. अब R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जब R इंटरनली इंटरसेक्ट करना है. पोजीशन वेक्टर हमें काम आने वाले हैं, उनको लिख लेते हैं. OP मेरे पास होगा ऐसे गिवन इन बुक I माइनस प्लस 2j माइनस k and OQ is माइनस I प्लस j प्लस k माइनस I प्लस j प्लस k. ठीक है, अब R निकालना है. सेक्शन फॉर्मूला से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास में R की वैल्यू कितनी होगी. विद रेशियो, रेशियो कहाँ से लिखते हैं, रेशियो है हमारे पास में m रेशियो n इक्वल्स टू 2:1. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है m इंटू OQ, मतलब इधर वाला रेशियो और दूर वाला वेक्टर प्लस n इंटू OP.
इधर वाला रेशियो, दूर वाला वेक्टर, डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है इसको। m की वैल्यू 2 रखी, o q की वैल्यू वहां से रख लेता हूं -i प्लस j प्लस k प्लस n की वैल्यू 1 रखी, o p की वैल्यू यहां से रख लेते हैं i प्लस 2j माइनस k और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। अब इसको बस सिंपलीफाई करना है आराम से प्यार से। इधर से आएगा मेरे पास में -2 और इधर से आएगा 1, तो ये हुआ माइनस के i। ठीक है, j कंपोनेंट इधर से मेरे पास में आएगा 2 और इधर से भी आएगा 2, तो ये हो जाएगा 4j। इधर से मेरे पास में आएगा 2 k के लिए और इधर से आएगा -1, 2 - 1 यानी कि +1, तो इट विल गिव मी k एंड डिवाइडेड बाय 3। वेक्टर की फॉर्म में अलग अलग सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, -1/3 i प्लस 4/3 j प्लस 1/3 k। तो अगर इंटरनली इसको सेक्शन करता है तो मेरे पास में वेक्टर बनेगा, इसका वेक्टर होगा, वेक्टर फॉर्म ये होगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सब कुछ सेम है, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है तो यहाँ पर वो बाहर है पॉइंट R और ये 2 है और ये 1, बाकी काम सेम। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, और ये इस बात पूछ रहा है कि ये कितना होगा। अगर एक्सटर्नली टू रेशियो 1 में डिवाइड करते हैं तो बताना कि कितना होगा। ठीक है, हाँ, अब सेम प्रोसीजर मेथड है, हमारे पास इंटरनल का फॉर्मूला अलग होता है, एक्सटर्नल का फॉर्मूला अलग होता है, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब वेक्टर R इस बार क्या होगा, m वेक्टर OP। ठीक है, सेम काम रहेगा, क्या काम रहेगा कि एक रेशियो उसके दूर वाला वेक्टर माइनस, इस बार लग जाएगा माइनस OQ एंड डिवाइडेड बाय m माइनस n। कोई काम नहीं बड़ा, रख देते वैल्यू, m की वैल्यू 2, OP की ठीक है रखा है, मैंने नहीं रखा, ये मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। यहाँ पर आएगा OQ और यहाँ पर आएगा OP। ठीक है, वैल्यू रखते हैं 2 × OQ -i प्लस j प्लस k -1 और फिर OP की वैल्यू रखते हैं i प्लस 2j माइनस k एंड डिवाइडेड बाय m माइनस n, यानी 2 - 1 तो 1। सिंपलीफाई करते हैं, इधर से -2 आएगा, इधर से -1 आएगा, तो बन जाएगा -3i। इधर से 2 आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इधर से -2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, इधर से 2 आएगा और इधर से प्लस के 1 आएगा, तो +3k, और नीचे 1 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये मेरे पास में एक्सटेंडेड डिवाइड करने पर जो बनेगा वो आएगा ये। अब ये हो 15 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब है 16th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। ये अच्छा, 2 पॉइंट हैं P और Q दिए हुए हैं, उनके मिड पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। बहुत आसान काम है, यही कर देते हैं, जब केमिस्ट्री को यही करते हैं, कर देते हैं। पॉइंट लिख लेता हूं मैं, जो है पॉइंट है मेरे पास में P = 2, 3, 4 और Q है मेरे पास में 4, 1, -k2। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई। अब इनका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट को m से नाम दे देते हैं क्योंकि फिर वाली बात नहीं है। अब मिड पॉइंट हमें निकालना आता है P + Q डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट निकालिए, 2 + 4 यानी कि 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब आएगा 3। सेकंड पॉइंट के लिए 3 +
1 4 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 2 डिवाइडेड बाय 2 1 जिसको समझ आ गया मैं लिखूं जिसको समझ नहीं आया मैं लिख देता हूं मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से बनेंगे 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 4 + -2 डिवाइडेड बाय 2 इसको सॉल्व करके मेरे पास डायरेक्ट पॉइंट्स आ गए। अब इसका मुझे क्या बताना है पोजीशन वेक्टर बताना है पोजीशन वेक्टर निकालना तो मैं आता है अच्छे से OM कितना होगा मेरे पास में 3i + 2j + k काम मिड पॉइंट निकाला और उसका हमने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया और वो आता है आसानी से निकालना। ये क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। आगे चलते हैं 17 में क्या कह रहा है पहले मैं लिख लूं जो पॉइंट दिए हुए हैं फिर इसका मैं रीड करता 17 में 3 वेक्टर्स दिए हैं इनका करना क्या है वो मैं आपको लिखने के बाद बताता हूं। फिर दिया है बी वेक्टर है 2i - j + k फिर दिया तीसरा वेक्टर i - 3j - 5k। हाँ अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कर रहा हूं शो दैट द पॉइंट a b c विद पोजीशन वेक्टर k का पोजीशन वेक्टर ये b का पोजीशन वेक्टर ये c का पोजीशन वेक्टर ये रिस्पेक्टिवली फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये जो पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपको प्रूव करना है कैसे प्रूव करेंगे अब आपको पॉइंट दिए हुए हैं और आपको बताना राइट एंगल ट्रायंगल अगर मुझे उसकी साइड्स मिल जाए बैक ट्रायंगल की और उसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर दूंगा देखो पाइथागोरस थ्योरम हो रही है प्रूव तो मेरा काम बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे निकालने पड़ेंगे ना लाइंस साइड्स तो इसको ये a ये b ये c तो मैं पहले क्या निकालता हूं वेक्टर a b निकाल लेता हूं। वेक्टर a b कितना आएगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a कैसे आया मैं लिख देता हूं साइड में ob माइनस OA से आया था ना तो b का पोजीशन वेक्टर ये दिया है a का पोजीशन वेक्टर ये दिया है मैंने इसलिए इसका लिखा ठीक है। अब मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिए कैसे किया मैंने b में से a माइनस करना है तो 2 - 3 यानी कि -1 फिर -1 + 4 ये प्लस हो जाएगा ना माइनस करें -1 + 4 तो ये आ जाएगा 3j +1 + 4 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5k ठीक है। अब दूसरा निकाल लेता हूं दूसरी साइड का वेक्टर दूसरी साइड के अलोंग जो वेक्टर है bc वो क्या होगा वेक्टर c माइनस वेक्टर d ठीक हो गई बात। अब c और b को करते हैं 1 - 2 तो आएगा -1i -3 + j तो आएगा -2j -5 -1 तो आएगा -6k यहां तक हो गई बात। फिर निकालता हूं AC निकाल लीजिए CA निकाल लीजिए एक ही बात है मतलब वेक्टर अलग अलग आएंगे पर उनका आगे इस्तेमाल सेम रहेगा। AC क्या है अब ये होगा मेरे पास में C - A माइनस करते हैं 1 - 3 यानी कि -2i -3 + 4 यानी कि +1j -5 + 4 यानी कि -j। अब ये जो ट्रायंगल की साइड्स थी उनके अलोंग वेक्टर्स आ गए लेकिन मुझे तो उनकी लंबाई चाहिए ना और वेक्टर की लंबाई किससे रिप्रेजेंट होती है उसके मैग्नीट्यूड से तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं फटाफट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी कितना आएगा ये आएगा मेरे पास में 1² -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर सोल्व कीजिए कितना आएगा 25 + 9 34 34 + 1 35
हो गई बात। अभी इधर निकाल लेते हैं, नीचे निकाल लेते हैं वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर कितना रहा है 36 प्लस 4 40 प्लस 1 41। अब AC का थर्ड साइड का निकाल लेते हैं माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ये यहाँ से टिक 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 यहाँ से निकाल लिया मैंने। और इसका क्या मैंने रूट, तो मेरे पास में आएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 का रूट। अब तीनों साइड की लेंथ आ गई, आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं। अब क्या कुछ दिख रहा है आपको इनके बीच में रिलेशन? अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। मेरे पास में रिलेशन क्या आ रहा है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मेरे पास में जो वेक्टर ए बी है उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं मैग्नीट्यूड का और उसमें वेक्टर ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐड कर दूं, यानी कि 35 रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 35 प्लस ये रूट है उसका फिर स्क्वायर क्या प्लस 6, मेरे पास आएगा 41। और 41 को मैं लिख सकता हूँ, एक नजर आया कुछ मुझे नजर आया, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 41 का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी जगह मैं लिखूंगा वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो जाने अनजाने हमें दिख रहा है कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है। सो ABC, triangle ABC is right angled triangle। ठीक है बच्चों, ये हुई एक बात। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। 18 में वो कह रहा है कि भाई मैं डायग्राम बना देता हूँ, नहीं ऐसा वो कह नहीं रहा, मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम मैं बनाता हूँ। पॉइंट A, पॉइंट B और C, और A में बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसके बीच में कौन सा रिलेशन सही है? पहले तो है ना 4 ऑप्शन दिए, उनसे एक वेक्टर A की वेक्टर BC के बीच में रिलेशन बताना। मैं पहले अपने तरीके से लिखता हूँ, मेरे पास में दिख रहा है मुझे वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल है ठीक है, ये यहां से क्लियर है। मेरे पास में वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC किसके इक्वल आ रहे हैं? वेक्टर AC के। अब इसी चीज को उसने थोड़ा सा नीचे रीस्ट्रक्चर करके दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जो है आराम से मिल जाएगा ऑप्शन। उसने दिया हुआ है वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर AC इक्वल्स टू 0, है ना। इसको इसको में लिख सकते हैं, तो 4 में से एक ऑप्शन इसको में, बाकी गड़बड़ है, लॉजिकल नहीं वेक्टर, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा लास्ट देख लेते हैं, लास्ट में पढ़ना होगा बस। इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं जो कोलिनियर हैं, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब मेरे साथ साथ करिए, कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शंस करते हैं। पहला ऑप्शन जो दे रहा है वो 9th क्वेश्चन के लिए, वो कहता B इक्वल्स टू लैम्डा A, वेयर लैम्डा सब स्केलर। हमें पता है कोलिनियर है तो इसका मतलब उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, या फिर वो दोनों वेक्टर्स ही एक दूसरे के क्या होंगे? स्केलर मल्टीपल्स होंगे। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक वेक्टर में दूसरा मिल जा रहा है, तो वही ये कह रहा है कि आप एक वेक्टर को लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास दिया जाएगा, तो सही है। इनकरेक्ट मुझे बताना कौन सा? ध्यान से इनकरेक्ट बताना है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वो कह रहा है दोनों इक्वल में प्लस माइनस के होंगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, दोनों कोलिनियर है तो ये वाली पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई हो सकती है। अगर ये दोनों दो वेक्टर कुछ इस तरह से हैं तो वो दोनों कोलिनियर हो सकते हैं, क्योंकि देखो एक केस में क्या है, प्लस
टू वेक्टर बी है तो, या फिर वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी। इसमें तो इक्वल ही है तो कोलिनियर होंगे, इसमें ऑपोजिट है तो कोलिनियर हो जाएगा। थर्ड कह रहा है ध्यान से, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन कोलिनियर होने के लिए तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहा है। इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन जो है वो गलत है, वो इनकरेक्ट है। तो जब आप एग्जाम में टिक लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे, थर्ड क्वेश्चन पर लगाएंगे। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, both the vectors a and b have same direction but different magnitude। अब कोलिनियर का मतलब क्या है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से मुझे मतलब नहीं है। वही फोर्थ कह रहा था, फोर्थ में हमें ठीक लग रहा है। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो गड़बड़ हो रहा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो। ये हमारे पास में एक्सरसाइज हुई 10.1।